Hello, welcome you all. In last class, I solved two problems of set theory, and please solve the other problem yourself, or else please mail me with your problem. I will solve that. Today, I'm gonna start with the next topic, that is relation. Okay. Previously, you know that this is a set. Suppose this is a set 1, 2, 3. So set means what? It is a list or collection of items. That is, here items are 1, 2, 3. So this is set. Then just quickly summarize the previous lessons. Then 1 belongs to A. That means what? 1 is item that belongs to A, that is present in A. 4 not belongs to A. That means 4 not present in A. Suppose another set 1, 2. It is a part of the set. It is a subset and proper subset because there is a one element lesser here. So it is a proper subset of A. 1, 2, 3. It is subset of A, also equals A. Okay. Now, so if any element is A, belongs to A, how we write? A belongs to A. Now we can write what is this? What this represent? ये क्या दिखाता है? এটার মানে কি? A, B মানে কি? A, B মানে হচ্ছে আগে যেমন একটা চল ছিল, A, B হচ্ছে দুটো চলের একটা pair of two item. That means this is a single item, this is pair. So this is a pair, and suppose this is an ordered pair. That means what? Ordered means have order, এর ক্রম আছে. That means if AB is in pair and BA is in pair, it is not same. Now A, B, that means it is order of A then B, and this is B and A. So order is where order is important. So that pair is called ordered pair. Suppose this is item pair. Suppose this is their A, B, C. Then this is called triplets. That means triple item is there. So it is called triplets. So you have understood what is ordered pair. Okay. Now let's have some idea of Cartesian product. Cartesian product. Okay. What is Cartesian product? You mean that you know that there is Cartesian coordinate. That means आप जानते हैं ये अगर x एक्सिस और ये y एक्सिस है, so किसी भी पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं? x, y. This point is x, y. Maybe 1, 2. So how we represent that? Because here x is what? 0, 1, 2, 3, 4 and so on. -1, -2, -3 and so on. For y also 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2, -1, -2, -3, -4 and so on. So you take both the values of x and y, and you have the possibilities of everything. That means take 0 of x, take 0 of y. It means this is center 0.0. Take 0 and take y of 0 of x and y of 1. It becomes 0.1. So some kind of multiplication of, not actual multiplication but conceptually, x cross y. That means x is a set that has value -infinity to +infinity, and y is a value -infinity to +infinity. And if you cross that product, it becomes it have infinite number of pair, that is 0, 0, 0, 1, 0, 2. Similarly, -1, 0, -1, 1 and so on. All the plane 2D surface will be covered with that Cartesian product. So what is actually Cartesian product? Suppose A and B are two sets. Suppose A is 1, 2, 3 and B is A, B, C.
then Cartesian product is represented by into multiplication sign, cross sign. Okay, so A cross B means what? So A cross B means what? How will you tell that? 1, 1 A. That means take A 1, 2, 3. Take B A B C. Then how many pair can be possible? One from this side and one from this side. So mathematically we can say A cross B means what? ये एक सेट होगा. इसके अंदर A के अंदर क्या है? A 1, 2, 3. B के अंदर क्या है? A B C. तो A क्रॉस B सेट के अंदर क्या होगा सर? A क्रॉस B के अंदर ऐसा देखिए यहाँ पे एक एक करके एलिमेंट है. तो यहाँ पे अगर क्रॉस है इसका मतलब यहाँ पे पेयर में एलिमेंट होगा, जोड़ा जोड़ा एलिमेंट হবে. তার মানে কি এর প্রত্যেকটা এলিমেন্টের A, B. In this form, all the element of A cross B will be there. So A cross B, हर एक A cross B तो इसका एलिमेंट नहीं होगा. So वो सब A cross B इसका एलिमेंट होगा. Mathematically saying, A cross B belongs to A cross B होगा कब? A, B belongs to A cross B कब होगा सर? तभी होगा जब ये A होगा, A belongs to A and B belongs to B. मतलब फर्स्ट पार्ट फर्स्ट से आएगा, सेकेंड पार्ट बी के सेट से आएगा. अगर ऐसा पेयर हम निकालते हैं तभी क्या होगा? वो सब एलिमेंट A क्रॉस B के सेट होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स चेक इट आउट. यहाँ पे क्या है? 1, 2, 3 A B C. सो फर्स्ट एलिमेंट में क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं. तो यहाँ पे ये फिलअप करने के लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा? 3 होगा. A B C. अगर यहाँ पे 2 लिया 3 पॉसिबिलिटी. A B अगेन A B C. अगर 3 लिया अगेन A B C. So how many pairs are possible? 3, 3, 3. Those pairs are 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C. यहाँ पे एक बार बोलिए सर, A, 1 क्या इसका एलिमेंट होगा? नहीं सर, क्योंकि A होना चाहिए था, ये पार्ट होना चाहिए था A सेट से. A सेट में कोई भी A एलिमेंट नहीं है, सो ये इसका एलिमेंट नहीं होगा. सो दीज आर विल बी द एलिमेंट. सो आप देख सकते हैं यहां से एक और चीज निकल आता है. A सेट में कितना आइटम है? 3. सो फॉर ईच 3 कितना चॉइस होगा? 3 चॉइस है, क्योंकि B सेट में भी 3 है. अगर यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ के 3 के लिए हर एक के लिए 4 ऑप्शन रहता. तो तब कितना एलिमेंट होगा सर? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. दैट मीन्स 12. दैट मीन्स 12. सो अगर A सेट में M एलिमेंट रहता है, देखिए A सेट में M एलिमेंट है, B सेट में N एलिमेंट है, तब क्या होगा सर? A सेट का ईच M एलिमेंट के पास कितना होगा? 1, 2, 3 यहाँ करके M एलिमेंट है. तो ईच एलिमेंट के पास कितना ऑप्शन रहेगा? N करके. इसके पास भी N, इसके पास भी N. सो अगर N plus N plus N plus how many times N will be there? M times. That means N into M. So यहां से क्या निकलता है? What can you derive from here? अगर A सेट में M है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ A is equal to M and कार्डिनलिटी ऑफ B is equal to N, then A क्रॉस B जो सेट होगा ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन, रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? इसका कार्डिनलिटी होगा M into N. यहां से एक और चीज निकल आता है. मान लीजिए आपके पास A सेट है, B सेट है, C सेट है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या किया सर? A B C. आप 2D प्लेन निकलने के लिए क्या किया? X and Y एक्सिस. You have chosen the X and Y एक्सिस. अगर आपको 3D सरफेस निकालना है, सपोज ऐसे, तो यहाँ पे X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस विल बी देयर. सो X ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है. सो तीन प्लेन मिलके 3D पिक्चर करता है. तो यहाँ का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? X क्रॉस Y क्रॉस Z. यहाँ पे 3 प्लेन का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लिए तो 3D का ईच पॉइंट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड. सो अगर A B C 3 सेट है, अगर तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया A क्रॉस B क्रॉस C, तब क्या होगा?
तब उसका एक एक आइटम होगा ए कॉमा बी कॉमा सी करके, सच दैट कैसे होगा, ए बिलोंग्स टू ए होगा, बी बिलोंग्स टू बी होगा एंड सी बिलोंग्स टू सी होगा। ये सब पॉसिबिलिटी सिर्फ इसका आइटम हो सकता है। ओके, नाउ फ्रॉम दिस कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी? ओके, you can attempt it yourself. Pause the video and attempt it yourself. I'm just explaining it here. So suppose A cross B is equal to how much? Suppose this is C set, D set. Then cardinality of A cross B what? From previous one I can tell that if A has M, B has N element and C has O element, MN O element, P element. Sorry, suppose P element. So A cross B will be what? M into N element and put D here. So final result will be D cross C. And what will be this answer? Cardinality of D cross C is cardinality of D into cardinality of C. Cardinality of D is what? M into N into cardinality of C is what? P. So answer will be M and P. A cross B का cardinality कितना होगा? M into N. A cross B cross C का कितना होगा? M into N into P. Just multiply कर दो। ओके, चलो आगे देखते हैं। सामने और देखो, लास्ट क्लास में क्या बोले थे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दैट मीन्स इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑपरेशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मतलब अगर आप पोजीशन चेंज करेंगे तो ऑपरेशन सेम रहेगा, बट अगर आप देखें कि ए क्रॉस बी लिया तो यहां पे ऑपरेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और बी क्रॉस ए लिया, ये सेम होगा कि सर? ये सेम नहीं होगा, क्योंकि देखो बहुत इजीली एक एग्जांपल ले लो तो क्लियर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी। सो ए क्रॉस बी विल बी व्हाट? Items will be what? And items of Cartesian product is written by what? Each set has item, comma separated, and each item in Cartesian product is a paired one. So ordered pair means what? Again a first bracket, and the items of that pair are separated by comma. This is one item of Cartesian product, and in this item, the two items of the pair, that pair is separated by comma. So items will be 1 comma A, 1 A लिया 1 B, again 2A 2B, 2 comma A comma 2 comma B. 4 item will be there. What will be B cross A? It will be again B will be then first. So A1 A2, B1 B2. So this is not same. Here A1 is there, A1 is there. And I have told you earlier, this is ordered pair. 1A, this order, and A1, this order is not same. So, ordered pair is not same. So, A cross B and B cross A is not same. So, Cartesian product does not follow the commutative law. ये करता है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए सर, N क्रॉस A क्रॉस B, N of A क्रॉस B, that means cardinality of A क्रॉस B and cardinality of B क्रॉस A, ये क्या सेम होगा सर? यस, ये सेम होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे M एलिमेंट है, N एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? MN होगा। अगर इसका एलिमेंट N है, सिमिलरली इसका एलिमेंट M है, इसका कार्डिनलिटी क्या होगा? N इंटू M। MN और MN तो सेम होता है सर, सो इसका कार्डिनलिटी सेम होगा, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं मान के चलता है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का आइटम नंबर सेम होगा, लेकिन आइटम्स विल बी डिफरेंट। ओके, कुछ शॉर्ट नोट है, देख लो एक बार। मान लो कि A है 1 2, B है 3 4, तो ये क्या है सर? ये डिसजॉइंट है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स A और B के अंदर कोई कॉमन नहीं है। इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, A क्रॉस B अगर निकाले तो क्या होगा सर? इससे देखिए सर क्या होगा, इसका आइटम्स क्या होगा? 1 2
1 4 2 3 2 4, ये 4 आइटम होगा सर ए क्रॉस बी का। बी क्रॉस ए का देखिए सर क्या होगा, 3 1 3 2 4 1 4 2, कुछ कॉमन है सर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस ए में, कुछ कॉमन नहीं है। सो अगर ए और ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन इसका जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए होगा ये भी डिसजॉइंट होगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, दैट मीन इसके अंदर कुछ कॉमन है। मान लीजिए सर 1,2 है ए और बी है 1,3, तो 1 कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं है। ए बी में क्या, ए क्रॉस बी में क्या होगा, 1 1 1 3 2 1 2 3, और बी क्रॉस ए में क्या होगा सर 1 1 1 1 2 3 1 3 2। तो देखिए सर ये 1 1 कॉमन है बोथ में, तब अगर डिसजॉइंट सेट नहीं है ए बी तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी डिसजॉइंट नहीं होगा। जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए ये समझ लीजिए, बाद में आप कॉन्सेप्चुअली इसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और देखिए सर, यहाँ पे क्या लिया, ए सेट लिया और बी सेट लिया, एंड वी हैव क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। सपोज दिस इज ए एंड आई क्रॉस्ड इट विथ ए इटसेल्फ, दैट मीन्स ए सेट को ए सेट खुद ही से हम क्रॉस प्रोडक्ट किया। ये पॉसिबल है सर? यस पॉसिबल है, बिकॉज सपोज ए इज इक्वल टू 1,1 एंड अगेन ए इज इक्वल टू 1,2 एंड 1,2, दिस इज सेट। If we cross it itself, then it will be what? 1 1 1 2, again 2 1 2 2. This will be the A cross A. इसका मतलब क्या है सर? इसको हम और भी लिख सकते हैं A स्क्वायर, खुद ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A स्क्वायर सेट क्या है, A cross A. That means this will be the ordered pair of four item will be there and 4 ordered pair will be there. Suppose AQ means what? A cross A cross A. That means there will be 3 Cartesian triplets. Sorry, there will be no ordered pair. There will be triplets. Something or something, something. Suppose A has one element, then A cross A will be what? Suppose it is A. One element is A. The A cross A will be what? A comma. This one single element. So अगर 1 है तो कितना एलिमेंट A cross में होगा सर? 1 होगा। अगर A is equal to 1,2 है तो A cross A में कितना होगा सर? 1 1 1 2 2 1 2 2। अगर 2 है तो एलिमेंट नंबर इज 4। अगर 3 है सर A cross A, देन क्या होगा सर? 1 लिया, नेक्स्ट 1 लिया, फिर 1 हो सकता है A cross A। अब देखिए सर 1 लिया, ये 1 रखते हैं, इसको चेंज करते हैं 1 1 2, देन इट इज एग्जॉस्टेड, सो चेंज दिस 1 2 अगेन 1 एंड 1 2 अगेन 2, चेंज दिस 1 आल्सो, अगेन इट इज 2, अगेन इट कैन बी 1 एंड इट कैन बी 1, ओके, इट कैन बी 2 अगेन 1 एंड चेंज दिस 1 2 ये खत्म हो गया, इसको चेंज करें सर, नेक्स्ट फिर से 1 अगेन 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 3 ऑर्डर पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना एलिमेंट हुआ? 8। सो देखिए k कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम k इज इक्वल टू 2। अगर हम a टू द पावर n निकालेंगे, k इज इक्वल टू कितना था? 2 था, तो 2 टू द पावर यहाँ पे खुद का मतलब क्या है, वहां पे तो कुछ ये छोड़ दी, एक एलिमेंट तो एक ही पेयर हो सकता है, A क्रॉस है, वो तो मतलब वो खुद सेट A है। अगर 2 है, देयर इज 2 आइटम, इफ देयर इज 2 आइटम, सपोज A कॉमा B, देन अगर एक ऑर्डर है, सिर्फ A है, तो कितना आइटम है? 2 आइटम, दैट मीन्स 2 टू द पावर 1। अगर एक क्रॉस किया, A स्क्वायर किया, तो कितना आइटम हुआ? 4, 2 स्क्वायर। अगर क्यूब किया तो कितना आइटम हुआ? 2 क्यूब। इसका मतलब क्या है सर, अगर एलिमेंट नंबर कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू m एंड वी टेक A टू द पावर n, देन नंबर विल बी m टू द पावर n। अगर ये A खुद लिया तो m खुद हो जाएगा, A स्क्वायर मीन m स्क्वायर, A क्यूब मीन्स m क्यूब, 2 टू द पावर 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब, वेरी इजी।
चलो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप अगर ये सीख जाए तो लेटर वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम देखे थे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन एंड सिमिलरली इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। सिमिलरली अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी रहता है तो दिस क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन एंड दिस क्रॉस आल्सो डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। देयर इज प्रूफ ऑफ दैट, प्लीज ट्राई योरसेल्फ एट होम एंड इफ यू हैव अब आपका अगर ये तकलीफ है तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा। जैसे समझ लीजिए तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब क्या होगा सर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर दिस, सो इट विल बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सिमिलरली ए क्रॉस बी यूनियन सी, दैट मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दैट मीन्स ए क्रॉस ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ नहीं मानता है, पहले मैं दिखा दिया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी ले लीजिए, पहले ये क्रॉस करे उसके बाद इसके साथ क्रॉस करे, पहले ये क्रॉस करे उसके बाद इसके साथ क्रॉस करे, दोनों सेम है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ मानता है, कम्यूटेटिव नहीं मानता, एसोसिएटिव मानता है। क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन एंड यूनियन ये भी मानता है, ये भी मानता है, ठीक है, ये आप देख लिए। चलो एक एग्जांपल करते हैं। आपको बोला गया है कि ए हैव x number of item, cardinality of a is equal to x and a cross a का cardinality है 4 and जो a cross a हुआ इसका एक सबसेट है c। वो c क्या है सर, वो c में दिया हुआ है 1 2 2 3 एंड 3 4, ये एक सबसेट है। ये C इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 एंड ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का आपका कार्डिनलिटी है, सॉरी दिस वन इज 16। देन ए सेट का कार्डिनलिटी क्या है सर एंड उसका एलिमेंट भी क्या है सर। देखिए ए क्रॉस में ए में क्या होगा, ये पेयर पेयर है, तो अगर ए क्रॉस है मतलब ये पार्ट भी ए का पार्ट है, ये पार्ट भी ए का पार्ट है, तो वो यहां से ये ऑर्डर से क्या निकलता है, ए बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, देन 2 बिलोंग्स टू ए, देन दिस इज ए, वी हैव इंक्लूडेड 2 बिलोंग्स टू ए, दिस इज देन 3 बिलोंग्स टू ए आल्सो, सिमिलरली 4 बिलोंग्स टू ए आल्सो, दैट मींस 1 2 3 4 ये इसका एलिमेंट श्योर है। और भी हो सकता है लेकिन ये श्योर है, इसके ज्यादा है कि नहीं सर। अब देखिए अगर यहां पे नंबर ऑफ एज एक्स इक्वल टू अगर 4 अगर मान लेते हैं कि हाँ इसका ओरिजिनली इसका 4 एलिमेंट ही है, तब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होना चाहिए, ए क्रॉस ए में कितना होना चाहिए, आपको बोले 4 इंटू 4, तो क्या हुआ 16 हो गया, और दिया हुआ ए क्रॉस ए 16। इसका मतलब हम लोगों का एजम्पशन जो था, हाँ इसका 4 ही है, इसको हम क्या करते एज्यूम कर लिया था, हाँ इसका मान चलो कि इसका 4 ही है, तब मेरा एक्चुअल जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही निकला, इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही था। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4 एंड आइटम्स विल बी 1 2 3 4। ऐसे आप लॉजिक लगा के ये सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, इसके बाद हम रिलेशन में जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना हम कॉन्सेप्ट यहां पे दिखाया, यहां से एक प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं, देखिए आपका क्लियर हो सकता है, यह बहुत अच्छा प्रॉब्लम भी है। आर क्या है, अगर हम आर लिखते हैं, आर सेट क्या है, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन व्हाट विल बी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगा सर, तो रियल नंबर मतलब क्या है, ये एक्चुअली है नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, आप लोगों को 5 6 में पढ़ा होगा संख्या रेखा।
दैट मीन्स नंबर लाइन. हियर इट इज 0, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन. इसका अंदर भी 0.5 है, 0.1 है, 0.000001 भी इसके अंदर है. तो ऑल द रियल नंबर इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज हियर. √2 is where? √2 means 1.414. That means somehow here. √3 means what? 1.732. That means √3 somewhere here. What is E? 2.72 and so on. So here is E. Where is pi? Here is pi and so on. Where is √5? √5 is 2 point something. 2.52 something. So here is √5 and so on. Similarly, in negative direction, here is -1, -2, -3. That means -√2, -e, -y is here, and so on to -infinity. This is R. That is all the set of all real numbers. So this is a number line. So what is R square? R square is the 2D plane. That means two-dimensional plane area is R square. Why? Because this is x-axis and forget this one. So this is a number line of R. Here x can be from what? -infinity to +infinity. Similarly, y is also another R. So y can be what? +infinity to -infinity. And take the Cartesian product of both this R into R, so it becomes R square. R square means what? R cross R, the Cartesian product between R cross R. In that way we are getting all the points in 2D plane. Suppose this is a floor and this is a origin 0.0, so this is 1.0, this is suppose 2.3, this is -2.3. This will be the, because here I am taking the -x part and positive x part, so this coordinate is minus plus, this coordinate is minus plus minus, this coordinate is minus minus, this is plus plus. So here that's why how we are getting the R square. Similarly, RQ, I have told you earlier, RQ is what? R 3D plane, that is our inverse. Maybe there is ND, but actually 3D plane is RQ. Okay, let's stop this here, and in next part I'll explain the relation, just introduction to relation and just some basic operation. Then it will take 3 or 4 class maybe to complete the relation. Relation is very important, because if you understand relation, then only you can understand the function. If you understand the function, then you can understand what is limit. If you understand limit, you will understand what is continuity. And if you understand continuity, then you will understand the calculus part. That means derivative or differentiation or integration. Okay. So understood. This part is very important. Okay. Thank you. Have a nice day.